Good morning, everyone. Welcome to my class again. As we have completed exercise 4.3, 7 question till yesterday's class, today we'll start with question number 8. If anybody have any confusion regarding the solution of question number 1 to 8 in exercise 4.3, so first of all, clear your doubts. Anybody have any doubt regarding that one? 1 से लेके 7 No, तक. sir. In question number 8, again you are supposed to plot the graph of this equation. ये equation आपको दिया है. क्या दिया है? Fahrenheit and Celsius के बीच में जो relationship है. How can we convert if you have given a temperature in Fahrenheit and you are supposed to convert that into Celsius, you are going to use this formula. ये जो formula है आप इसको use कर सकते हो. And that is given by Fahrenheit is equals to 9/5 into Celsius plus 32. To draw the graph, first question is draw the graph of this linear equation above using Celsius for x-axis. Celsius को आप x-axis पे लोगे और Fahrenheit को y-axis पे लोगे. And if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 95 degrees Celsius, what is the temperature in Celsius? Similarly, if the temperature is 0 degrees Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? So these are the questions which you have to give answer after plotting the graph of this one. Question is clear to everyone or still any confusion is there? No sir, no doubt. ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. आप लोग ग्राफ पहले बनाइए. पहले ग्राफ बनाने में ही टाइम लगेगा. मैं यहाँ साइड पे ग्राफ बना देता हूँ. जस्ट अ मिनट. मेरे पास ग्राफ है. आई एम गोइंग टू शेयर दैट ही. इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इस तरह से कुछ आएगा. Just a minute, I'm going to share that graph again. This graph is visible to everyone. ग्राफ भी स्क्रीन पे है अभी. देखो ऐसे यहाँ पे जैसे बोला है सेल्सियस को आपको लेना है किसमें एक्स एक्सिस के ऊपर. तो एक्स एक्सिस के ऊपर Yes sir. टेकन द एक्स एक्सिस हियर. ये हमारा एक्स एक्सिस है. इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. इससे आगे आएगा. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. फारेनहाइट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लिया है. स्केल यहाँ पे नहीं लिखा, लिख देता हूँ मैं. वाई एक्सिस स्केल यहाँ पे लिख दो आप. ऑन एक्स एक्सिस स्केल ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने? 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है? 10 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑन वाई एक्सिस I have taken 1 centimeter is equals to again 10 degree Fahrenheit. 10 degree Fahrenheit. यहाँ पे सेल्सियस है, यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट है. ओके. So when this is the graph between the Celsius, I have taken Celsius on x-axis and Fahrenheit on y-axis as it is mentioned in the question. Question में ये mention कर दिया है तो आपको वही करना पड़ेगा. And if the temperature is 30 degree Celsius, second question का आंसर भी यहीं पे है. If the temperature is, see, if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 है यहाँ पे. देखो आप लोग 30 है यहाँ पे और 30 पे होगा तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट. तो आप जब इसको अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो 30 से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इट इंटरसेक्ट दिस लाइन हियर एंड इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर इट विल इंटरसेक्ट एट 86. मतलब 80 और 90 के बीच में जो 10th सब डिवीजन है उसमें जो 6th पॉइंट होगा इट विल इंटरसेक्ट देयर. देयरफॉर दिस टेम्परेचर विल बी व्हाट? 86 डिग्री. इज इट क्लियर? आप इसको प्लॉट कीजिए जैसे वैल्यूज दिया है. तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो तो हमने पहला का तो आंसर यही है. ग्राफ बनाना था तो आई हैव जस्ट drawn the graph here. In the second one, if the temperature is 30 degree Celsius, if T is equals to 30 degree, what will be the temperature in Fahrenheit? So as per this formula, F is given by what? 9/5 into C. C is 30 degree Celsius
देन प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, इट विल बी हाउ मच 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ में भी 86 पे इंटरसेक्ट करेगा, बाय कैलकुलेशन आल्सो इट विल बी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ओनली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला, यदि हम फ़ारेनहाइट कितना डिग्री लेंगे, फिर 95 डिग्री, इफ f इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो ये वाले फॉर्मूले में ही रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 95 लिया है ना, सॉरी, यहाँ पे 95 लिखेंगे। 95 इज इक्वल्स टू व्हाट, 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 32 इधर से इधर ले जाएंगे, तो 95 माइनस 32 विल बी व्हाट, 95 माइनस 32 एंड व्हाट 5 मल्टीप्लाई में आएगा और 9 डिवाइड में आएगा, इज इक्वल्स टू सी। 95 माइनस 32 हाउ मच, 63, 5 minus 2 is 3 and 9 minus 3 is 6, 63 into 5 upon 9, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो 7 5 जा 35, कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा यदि हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे, यहाँ से 90, यहाँ है 95, यहाँ से 95 लेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 35 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो आप ग्राफ से भी वो फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Similarly, fourth one. In fourth one, it is given that if the temperature is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius होगा तो क्या होगा? तो Fahrenheit, it is very clear that it will be 32 degree Celsius. देखो, just a minute, fourth वाला भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। Fourth में क्या बोला है कि if C is equals to 0 degree Celsius, तो Fahrenheit में क्या होगा? तो F is equals to what? 9/5 इंटू सी तो 0 हो गया, 0 प्लस 32 दिस होल टर्म इज 0, therefore f is equals to what, 32 degree Fahrenheit. And if f is 0, it is also given that if the f is 0, if f is equals to 0 degree Celsius, 0 degree Fahrenheit, what will be c? तो c क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये क्या होगा, 0 is equals to what, 9/5 into c plus 32, 32 इधर आएगा, it will be minus 32 into 5 upon 9, कितना होगा, minus 32 into 5 upon 9, तो कितना हो जाएगा, 32 5 is how much, just multiply it by 5 and divide it by 9, do it fast. तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो, 17.7 बार क्यों लगा रहे हो, बार मत लगाओ, 32 into 5, it will be 160 divided by 9 ना, 160 divided by 9 is 17.77, 17. yeah, you can write minus 17.78 degree Celsius. Clear? And last one, वो फिफ्थ वन, कौन से टेम्परेचर पे दोनों, मतलब एट व्हाट वैल्यू, कौन से वैल्यू पे दोनों की टेम्परेचर सेम होगी, मतलब फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो जाएगा, सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में f इज इक्वल्स टू सी ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, f इज इक्वल्स टू सी, कि इफ f इज इक्वल्स टू सी देन दिस इक्वेशन विल बी व्हाट, इस इक्वेशन f की जगह c कर देते हैं, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट, 9/5 c प्लस 32। नाउ सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इधर, पहले तो 32 इधर जाएगा, तो इट विल बी c माइनस 32, राइट, c माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9, नहीं ऐसे मत करो, जस्ट कंट्रोल दैट, c माइनस 32 इज इक्वल्स टू व्हाट, 32 को उधर मत लो, ये आप ये 9/5 c है ना, उसको इधर ले दो, तो c माइनस 9/5 c is equals to 32, and if you simplify this one it will be 5c minus 9c, क्या होगा ये, 5c minus 9c, right, it will be 5c minus 9c
upon 5 is equals to 32. Clear? Now 5c minus 9c will be what? minus 4 Minus 4c upon 5 is equals to 32, and therefore c is equals to what? C is equals to 32 into 5 upon minus 4. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों इक्वल होंगे. मतलब माइनस 40 डिग्री यहाँ पे जब ग्राफ को हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से जो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा और यहाँ से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, दोनों इक्वल होगा. Is it clear to everyone? Just plot this graph and then write this calculation in your notebook. If anybody have any confusion regarding this solution, just unmute yourself and speak. Students, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, now moving to the exercise 4.4. In exercise 4.4, you are given 2 questions. And now in this exercise, we are going to learn how to represent equation of the form x is equals to any constant. That means x is equals to a and y is equals to b in 1 variable and 2 variable. The meaning of 1 variable and 2 variable in the graph is what? If it is asked, you have to construct in 1 variable, that means you are supposed to draw a single line. Either you have to draw x-axis or you have to draw y-axis. Is that clear? यदि आपको 1 वेरिएबल बोला गया है, इसका मतलब यही है ग्राफ में कि 1 वेरिएबल का मतलब या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, या तो वो सॉरी नॉट अ लाइन, either that point will lie on the x axis or that lie on y axis. तो 1 वेरिएबल होगा तो आपको केवल एक ही एक्सिस बनाना रहेगा, या तो x एक्सिस आप बना दोगे या तो y एक्सिस बना दोगे. यदि x इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो x एक्सिस बना दोगे, y इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो y एक्सिस बना दोगे. बट इट इज आस्क्ड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट that equation in 2 variable. That means you have to plot x axis also and y axis also. फिर उसकी पोजीशन के हिसाब से आप उसको लोकेट कर दोगे. For equation y is equals to something, if y is equals to something is given, that means that line will be parallel to x axis. x axis के parallel उस वहां से line आएगी. And if it is given x is equals to something, that means that will be parallel to y axis. मतलब x equals to something रहेगा तो y axis के parallel line आएगी, और y is equals to something रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी. ओके, मैं अभी इसको बना के दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा. सपोज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. इन दिस फर्स्ट वन यू हैव गिवन y is equals to 3. तो ये y is equals to b के फॉर्म में है. y is equals to b. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस इन 1 वेरिएबल. 1 वेरिएबल मीन्स we are going to plot this point or we are going to represent this point on y axis. आप y axis बनाओगे और उसके ऊपर इसको प्लॉट कर दोगे. 1 वेरिएबल सी. तो y axis हमारी वर्टिकल लाइन आती है, तो जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. एक वर्टिकल लाइन में बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा सपोज मैंने ऐसा एक लाइन बना दिया, ठीक है. नाउ you are supposed to represent this point on this line. तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं. सी, अब हमको पता है कि सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे यदि मैंने 0 लिया, ठीक है, 0, तो अप साइड इट विल बी पॉजिटिव एंड डाउन साइड इट विल बी नेगेटिव. दैट इज क्लियर टू एवरीवन. एक्स एक्सिस के सेंट्रल पॉइंट पे यदि मैंने 0 लिया तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा. दैट इज क्लियर. Yes, sir. तो ये Yes, sir. 0 हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ पे 2 ले लेते हैं, एंड दिस 3. ये पोजीशन जो है 3, ये जो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन 1 वेरिएबल. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एंड इफ इट इज आस्क्ड व्हाट कंस्ट्रक्ट इट इन 2 वेरिएबल, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस दोनों बनाना है. सी, इन 2 वेरिएबल तो आपको 2 एक्सेस बनाना है. जैसे आप ग्राफ बनाते हो उसी तरह से बनाना है. एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक वाई एक्सिस हो जाएगा. तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक और लाइन बना देता हूँ मैं, दैट विल बी द एक्स एक्सिस. देखो ये दोनों लाइन बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों.
अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, y इज इक्वल्स टू 3। तो y इज इक्वल्स टू 3, तो जहाँ पे पहले आया था दिस इज 0, ये आया आपका 1, ये आया आपका 2 और ये आया आपका 3। अभी मैंने बात की, इफ y is equals to something is given, that means that line will be parallel to x axis। हमारा x axis ये है, ये हमारा x axis है और ये हमारा y axis है, राइट। तो ये यहाँ से ये जो 3 पॉइंट है यहाँ से एक हम लाइन बनाएंगे that will be parallel to x axis। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जस्ट एक रे, अब यहाँ 3 से पास होने वाली रे ले लो, ऐसे रे लो, जस्ट that ray will be passes through this point। ये इस तरह से आप एक रे लोगे that will be passing through here, ठीक है। ये और आगे पीछे तक आप कर सकते हो, इसको एक्सटेंड करना है तो यू कैन एक्सटेंड इट, नो प्रॉब्लम, बट इट विल passes from where 3 and parallel to x axis। as it is given that y is equals to 3, it is very much clear that it will be parallel to x axis, and if it is given x is equals to something, then it will be parallel to y axis। this solution is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये प्लॉट कर लो फटाफट। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द सेकेंड वन ऑल्सो, सेकेंड वाले में भी आप बना सकते हो ऐसे ही। मैं सेकेंड वाला यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग बना लेना। देखिए सेकेंड वाला आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। इन द सेकेंड वन you have given 2x plus 9 is equals to 0, so this can be written as what, 2x is equals to minus 9 and x is equals to what, minus 4.5। is it clear? x is equals to minus 4.5, क्लियर है। अब यहाँ पे वन वेरिएबल वाला यदि हम बनाएं, फर्स्ट वन इज वन वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, केवल एक्स एक्सिस बनाएंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस, एक सीधी लाइन हम बनाएंगे। जस्ट अ मिनट, ये इस तरह से हम एक्स एक्सिस बना देते हैं। अब इसके ऊपर हम उसको शो कर देंगे ये कहाँ पे आएगा। ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, 0, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो नेगेटिव में है तो -1 हियर, -2 हियर, -3 हियर, -4 हियर एंड -5 हियर। तो इसके बीच में जो पॉइंट आएगा फिफ्थ, यदि आपने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया है तो दैट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ जो सब डिवीजन होगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ व्हाट, -4.5। ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, this is x is equals to -4.5 you can write, or if you want to write you can write this one also, 2x plus 9 is equals to 0, this position। is it clear in one variable? Yes, sir. for two variable what you have to do, अभी मैं इसी पे बता देता हूँ। ये जो ग्राफ बनाया हूँ यहाँ पे, चलो दूसरा ही बना देता हूँ, फिर से प्लॉट करना पड़ेगा दो एक्सिस। ड्रॉ for two variable you are supposed to draw two axes। एक मैंने ऐसे ले लिया और दूसरा यहाँ से ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। दिस इज फॉर टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए ये -1, -2, -3, -4 एंड -5, और यहाँ पे जो बीच में ये पॉइंट आएगा दिस इज -4.5। यू आर सपोज टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 4 और 5 के जो बीच में पॉइंट आया, यू आर सपोज टू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम देयर। यहाँ से आप दूसरी लाइन बना दोगे जैसे मैंने यहाँ से बनाया था। कैसे, किसके पैरेलल बनेगा, y एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू Y एक्सिस। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसा लाइन बनाओगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो सीधा कर दो, टेढ़ा है, राइट, और एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर दो।
right, in this way. Hope it is clear to everyone. Is it clear? So this line, yeah, Yes. this line is for what? Second equation, 2x plus 9 is equals to 0, and this line is equals to, in first case, y is equals to 3. यहाँ पे भी y is equals to 3. Hope it is clear to everyone. Still anybody have any confusion regarding the solution? Just unmute yourself and speak. Clear है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले we'll do the revision. सबको वर्कशीट मिल गई है? रिवीजन वर्कशीट. So, sir, we can start doing that worksheet. Yeah, we can start solving that worksheet in the regular classes. We will discuss all the problems in the regular classes, and we will do some extra sums also. ठीक है, उसके बाद Sir, we have to do that worksheet in a regular notebook. you can do, no problem. You can do. Okay. Okay. So this is all for today's class. We will start our revision work in the next class.